कर ले हम लोग फॉर यूट्यूब Yes, अपलोड. yes, yes, ओके. ma'am. यस, प्लीज प्रोसीड. Thank you, Vaishali ji. Thank you, Asha ji. First of all, I would like to congratulate the entire team of Gurugram Guru Women Chartered Accountants Association to create such an organization where the entire charge and responsibility is taken by the female chartered accountants. So, congratulations. This is the first time I am on this platform. And without wasting any further time on these discussion, I would start my deliberation on the topic, the latest reforms that have been introduced by the 56th council meeting. So we would have already heard a lot about the council meeting, कि क्या हुआ, क्या rates में changes आए. And over the past 10-15 days, we have also seen some notifications issued. Last set of notification वो rate का था, वो कल आ गया. And some notifications will be issued in a subsequent date. क्या होंगी, किस चीज के relation में होंगी, that we will be discussing during the deliberation. Just give me a second to bring my screen before everyone. So I have divided the entire discussion into seven broad categories. We will first start with understanding what are the effective dates for various changes that have been proposed. And उसके बाद वो सात categories. I am not reading it out क्योंकि subsequent slide में भी it is the similar thing. So first of all, there are proposed changes in tax rates. The notification was issued last night. So except for pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, etc. जो भी रेट प्रपोज हुए थे प्रेस रिलीज के अंदर दोज वुड बी इफेक्टिव फ्रॉम 22 सितंबर 2025. यानी फ्रॉम द डे ऑफ 22 सितंबर न्यू रेट्स लगेंगे एक्सेप्ट फॉर जो मेरे टोबैको प्रोडक्ट्स हैं. द डेट विल बी नोटिफाइड ऑन अ फ्यूचर डेट. अभी उसकी डेट नोटिफाई नहीं हुई है. सो इट विल अगेन गो बैक टू द काउंसिल. इट विल कम इन द प्रेस रिलीज एंड सब्सिक्वेंटली होगा. सो अनदर 6 मंथ्स तो कहीं नहीं गए एंड इट मे टेक इवन मोर देन दैट. After that, GST tribunal. So there were certain dates which were categorically specified for the GST tribunal. जब हम उसमें जाएंगे तो broadly तीन dates हमें मिलेंगी: September 25, December 25 and June 26. वो dates किस चीज को deal कर रही हैं, we will discuss in the relevant portion. Then there were certain changes proposed in the law क्योंकि अब इतना mammoth change ला रहे हैं. So that would require certain amendments, certain reflections in the laws also. तो उसके रिलेशन में कुछ रिफंड और रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन उन्होंने चेंज किए. एंड लास्टली जो उन्होंने एक मेजर चेंज किया है दैट विल कम विद इफेक्ट व्हेन द फाइनेंस एक्ट इज एक्चुअली अमेंडेड, दैट इज इन रिलेशन टू इंटरमीडिएट, दैट इज सेक्शन 13 सबसेक्शन. तो ये ब्रॉडली चेंजेस है. तो जिसमें जो सबसे पहला चेंज है, टुडे इट इज 18 सितंबर 2025, 19, 20 एंड 21, यानी आज से 3 दिन तक पुराने रेट लगेंगे. एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 22 सितंबर हम लोग नए रेट के ऊपर ट्रांजिशन कर जाएंगे. तो अब ये समझना जरूरी है, जब हम नए रेट्स के ऊपर ट्रांजिशन होंगे तो एक्चुअल में रेट कौन सा लगेगा. देयर मे बी सर्टेन ट्रांजेक्शन विच आर ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग से मतलब वो शायद स्टार्ट हो गई थी 22 से पहले लेकिन कंप्लीट होगी 22 के बाद. उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर व्हाट इज द टैक्स इम्प्लीकेशन. So the relevant provision is Section 14 of the GST Act, which says that if there is change in rate of taxes, then you have to ignore Section 12, you have to ignore Section 13. Section 12 and Section 13 provide the time of supply in relation to goods and services. And what is time of supply? Time of supply is that point in time when the liability to pay GST has accrued. वो टाइम जब जीएसटी की लाइबिलिटी एक्रू हो गई है, और लाइबिलिटी एक्रू हो गई किसी एक पर्टिकुलर मंथ में, तो सब्सिक्वेंट मंथ में आई हैव टू पे दैट लाइबिलिटी, आई हैव टू डिस्चार्ज दैट लाइबिलिटी. तो टाइम ऑफ सप्लाई वो टाइम है जब वो लाइबिलिटी आप बोलते हैं कि वो एक्रू हो गई. सेक्शन 14 कैटेगोरिकली बोलता है कि नॉर्मल रूटीन में तो आप सेक्शन 12 और 13 फॉलो करिए, जो वहां पे प्रिंसिपल दिए वो फॉलो करिए. बट इफ इट इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्सेस तो आपको सेक्शन 14 फॉलो करना है. तो सेक्शन 14 के अंदर पार्ट ए पार्ट बी है. एक गुड्स के साथ डील करता है, एक सर्विसेज के साथ, सॉरी, एक डील करता है कि अगर आपने सप्लाई पहले करी है बाद में करी. आई एम नॉट रीडिंग दीज वर्बेटम प्रोविजन, रादर इसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच से समझने की कोशिश करेंगे. इन एनी सप्लाई ट्रांजेक्शन, किसी भी सप्लाई की ट्रांजेक्शन के अंदर
सेल की ट्रांजैक्शन के अंदर तीन सब इवेंट्स होती हैं। एक होती है एक्चुअल डेट ऑफ सप्लाई, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स, मैं ये मोबाइल फोन बेच रहा हूं तो मैंने एक्चुअल में आपको मोबाइल कब हैंड ओवर किया। सेकंड, इसका इनवॉइस मैंने कब इशू किया। एंड लास्टली, इसकी पेमेंट मैंने कब रिसीव करी। यानी एक ट्रांजैक्शन के अंदर तीन सब इवेंट्स होती हैं कि एक्चुअल सप्लाई कब हुई, उसका इनवॉइस कब इशू हुआ, उसकी पेमेंट कब आई। हमें ये तीन इवेंट्स को प्लॉट करना है अपने टाइमलाइन के ऊपर। फॉर एग्जांपल मेरा 25-26 चल रहा है, बीच में 22 सितंबर आ गया जिस दिन रेट चेंज हो रहा है। अब मेरे को ये तीन इवेंट्स प्लॉट करनी है। ये तीन इवेंट्स जब मैं प्लॉट करूंगा तो पॉसिबिलिटी है कि दो या दो से ज्यादा इवेंट्स पुराने रेट में आ रही होंगी, या दो से ज्यादा इवेंट्स नए रेट में आ रही होंगी। तो जहां पे भी वो दो या दो से ज्यादा इवेंट फॉल कर रही है वही वाला रेट इसमें लग जाएगा। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैंने ये मोबाइल से आशा जी को सेल किया, मैंने ये सेल कर दिया था 21 सितंबर को, मैंने ये मोबाइल भी उनको 21 सितंबर को हैंड ओवर कर दिया और मैंने इनवॉइस भी 21 सितंबर को हैंड ओवर कर दिया। लेकिन उन्होंने पेमेंट मुझे करी 23 सितंबर को, 3 या 4 दिन बाद। अब मैंने इसको प्लॉट किया तो सप्लाई कब होगी, 21 को। इनवॉइस कब इशू हो गया, 21 को। पेमेंट कब आई, 23 को। उसने बोला आपको इस केस में पुराना रेट ही लगाना है इवन दो पेमेंट बाद में आ रही है। तो गुड्स के केस के अंदर जनरली क्या होता है, जिस दिन मैंने सप्लाई करी उसी दिन मेरे को इनवॉइस भी बनाना होता है, क्योंकि मेरी बहुत एक ही स्पेसिफिक सिचुएशन है जो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। अदरवाइज जब भी मैं माल बेचूंगा उसी समय पे मेरे को इनवॉइस बनाना पड़ेगा। यानी उसमें इनवॉइस और सप्लाई की डेट ऑलमोस्ट सेम रहेंगी। जब वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगी तो टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के लिए हमेशा पहले ही, मतलब अगर वो 22 से पहले सप्लाई होगी तो वही पुराना रेट ही रह जाए। इसकी एक एक्सेप्शन है, जब गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, यानी जब हम डिलीवरी चलान पे भेजते हैं। अभी उस कॉन्सेप्ट को हम लास्ट अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सेकंड केस सर्विसेज का हो गया। अब सर्विसेज में क्या हो गया, वैशाली जी ने बोला सर मेरा घर आप कंस्ट्रक्ट कर दीजिए, मैं बॉक्स कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं उनका घर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। अब मैं तो 1 सितंबर को भी काम कर रहा था, 20 को भी काम कर रहा था, 21 को भी काम कर रहा था, 22 को भी काम कर रहा हूँ, 24 को भी काम करूँ, अक्टूबर में भी करूंगा, नवंबर में भी करूंगा। इस सिचुएशन में मेरा क्या होगा। वैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी सर्विसेज में आए हैं। तो उस केस में क्या होगा, वो ये कहता है कि जिसमें दो या दो से ज्यादा इवेंट फॉल करती हैं, तो मेरी सप्लाई तो कुछ पहले हो गई थी कुछ बाद में हो रही है, लेकिन मेरा इनके साथ डिसीजन क्या था कि मैं अपना इनवॉइस हर मंथ के एंड के ऊपर इशू करूंगा। यानी पूरे सितंबर का इनवॉइस मैं इशू करूंगा सितंबर एंड को, और ये पेमेंट देंगी उसके 10 दिन बाद। तो उस केस में क्या होगा, इवन तो मैंने 1 से 21 सितंबर की सप्लाई पहले कर दी थी, लेकिन इनवॉइस और पेमेंट दोनों बाद में आ रही है, तो मेरे को नया रेट इस केस में लगाना पड़ेगा। यानी 2/3 का रूल यूज करना, जहां पे दो रह जाएंगी वो रहेगा। अच्छा सर, अब दो रह गई। अब ये जो वैशाली जी वाला केस था उसके अंदर क्या हुआ, इनवॉइस कब इशू हुआ, 30 सितंबर को। पेमेंट कब आई से 5 अक्टूबर को। अब टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है, किस महीने लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी है। तो अब इस केस में आ गया कि सर दोनों इवेंट, इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, दोनों बाद में आ रही है। नया रेट लगना ये भी समझ लग गया, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, वो सितंबर की लाइबिलिटी बनेगी या अक्टूबर की लाइबिलिटी। जिस दिन इनवॉइस कटा उस दिन लाइबिलिटी बनी, या जिस दिन पेमेंट आई उस दिन लाइबिलिटी बनी। तो लॉ बोलता है कि इनवॉइस और रिसिप्ट जो पहले हो गया उसी दिन आप लाइबिलिटी भी एक्रू कर देंगे। तो इन दोनों में से जो पहले हो गया, तो इस केस में मैंने 30 सितंबर को इनवॉइस काट दिया, तो मेरी लाइबिलिटी भी 30 सितंबर को क्रिएट हो जाएगी, मुझे अपनी GSTR 1 3 भी सब में अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ केसेस आएंगे, फॉर एग्जांपल मैंने पहले एडवांस रिसीव कर रखा था, पहले सप्लाई कर रखी थी। तो पहले एग्जांपल लेते हैं कि मैंने ये मोबाइल बेचा था आशा जी को, 21 सितंबर को बेच दिया था। उन्होंने क्या किया, डब्बा ओपन नहीं किया, 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो आई, वो कहती कि ये मेरे को मोबाइल पसंद नहीं आ रहा। एज्यूम करते हैं इसका रेट पहले 12% था, पोस्ट 22 सितंबर ये 18 हो गया या 5 हो गया, कोई भी रेट हो गया। अब ये मेरे को रिटर्न करने आ गई। अब एक जो बेसिक क्वेश्चन आ रहा है कि रिटर्न के टाइम पे जब मैं क्रेडिट नोट बनाऊंगा तो क्या मैं 12% का बनाऊंगा, या से न्यू रेट 18% है तो मैं 18% का बनाऊंगा। तो सर यहाँ पे बहुत सिंपल लॉजिक लगाएंगे।
ओरिजिनल क्या करी थी, सप्लाई हो चुकी है, उस सप्लाई का एक, जिसे मैं बोलूंगा आफ्टर इफेक्ट आ रहा है कि वो सप्लाई नलिफाई हो रही है। इफेक्टिव हम सेक्शन 14 कब पढ़ेंगे, जब सप्लाई नहीं हो रही है, उस सप्लाई का टैक्स रेट ढूंढना है। यहाँ पे सप्लाई पहले हो चुकी है, उसका टैक्स रेट पहले ही मिल चुका है कि वो 12% का है। इवन तो उसकी रिटर्न बाद में आ रही है, तो वो रिटर्न भी 12% पे ही आएगी, वो 18% पे नहीं आएगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, सेक्शन 14 बात करता है, जो ओवरराइड करता है वो कहता है कि अगर कोई सप्लाई आपकी है उसका टैक्स रेट डिटरमिन करना है। यहाँ पे आपका टैक्स रेट सप्लाई का डिटरमिन हो चुका है, ओल्ड रेट पे हो चुका है। अब उसके बाद वो सिर्फ रिटर्न हो रही है। रिटर्न के टाइम पे देर इज नो न्यू सप्लाई विच इज कमिंग इन द पिक्चर, वहां पे सिर्फ एक रिटर्न हो रहा है, वो नलिफाई हो रही है। तो वो आपको पुराने रेट पे ही अपनी रिवर्स करनी है, यानी सेल रिटर्न जो होगी वो सारी पुराने रेट के ऊपर ही आपकी बुक होंगी। सो इसके नोट सर, सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए सिर्फ एक ही एक्सेप्शनल सिचुएशन है जब आपको सेक्शन 14 पढ़ना पड़ेगा, वो क्या है, जब आपने गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस कंसाइनमेंट बेसिस पे भेज रखे हैं। यानी आपने माल भेज दिया और बोला सर ये माल आप अपने पास रखो, जिस दिन बिक जाए मेरे को बता देना, मैं अपना इनवॉइस काट दूंगा। 6 महीने तक माल आपके पास पड़ा हो सकता है, मैं अपना इनवॉइस नहीं काटूंगा। उसी केस में मैंने सप्लाई पहले कर दी और इनवॉइस और पेमेंट बाद में आ सकती है, तो वो मेरा एक ही एक्सेप्शन है। सर्विसेज के केस में ये बहुत रूटीन में हो सकता है, तो वो मैंने डिस्कस नहीं किया। सेकंड इज डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट को भी एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। एंड इट सेज कि जिस दिन आपके बैंक में ये हिट हो जाती है, जिस दिन आपके बैंक में हिट हो जाती है, वो डेट हम मानेंगे, अगर वो विद इन 4 डेज है इफेक्टिव रेट के बाद। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे ये पता है कि ये 12% से 18% पे हो रही है आइटम, तो मैं क्या करूं, मैं अरेंजमेंट कर लूं अपने किस सप्लायर के साथ, मैं आज इनवॉइस बना देता हूँ, माल भी 1 महीने बाद भेज दूंगा। इनवॉइस आज बना दिया 22 से पहले, माल भी 1 महीने बाद भेजूंगा, यानी डिलीवरी 1 महीने बाद करूंगा। आप पेमेंट भी 1 महीने बाद करना। तो उसने बोला यार टोल रेट तो बाद में हो जाएंगी, नया रेट लग जाएगा। तो किसी सीए ने बोला कि ऐसा करते हैं, इन एक इनवॉइस, सॉरी, चेक बना देते हैं, चेक पे डेट भी 21 सितंबर डाल देंगे। तो मेरा इनवॉइस भी 21 सितंबर, मेरे चेक की डेट भी 21 सितंबर। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, मैं सेकंड पॉइंट रीड कर रहा हूँ, द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट शैल बी द डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक अकाउंट इफ सच क्रेडिट इन बैंक अकाउंट इज आफ्टर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन डेट ऑफ टैक्स। यानी अगर 4 दिन, 22 सितंबर प्लस 4 दिन, 26 सितंबर के बाद कोई आपका इवेंट हो रही है, यानी रिसिप्ट एक्चुअल हो रही है, तो कह रहे हैं हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आपने 21 सितंबर का चेक बनाया, वो 26 तक क्लियर करा दिया, तो हम आपकी बात को मान जाएंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम आपकी बात, आपके लॉजिक को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम ये मानेंगे सप्लाई भी बाद में हो रही है, पेमेंट भी बाद में आ रही है, आपको नया रेट लगेगा, आप कैमोफ्लॉजिंग यहाँ पे नहीं कर सकते। सर्विसेज के अंदर सर एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर हमने ऑलरेडी एडवांस दे रखा है। फॉर एग्जांपल होटल एकोमोडेशन का रेट चेंज हो गया, किसी ने अपनी बुकिंग करा रखी थी से एक उस होटल का रूम रेंट था 5,000 रुपीज, उसमें पहले रेट लग रहा था 12%, होटल ने भी 12% के हिसाब से अभी टैक्स कलेक्ट करा हुआ है। अब गोइंग फॉरवर्ड वो 12% की जगह क्या हो गया, 5% विदाउट आईटीसी। अभी वो एज्यूम करते हैं कि रेट इंक्रीज नहीं होता या कुछ भी नहीं होता। इस केस में होटल वाला क्या करेगा, वो बोलेगा सर जब मैंने एडवांस रिसीव किया था, तो मैंने एक रिसिप्ट वाउचर बनाया था जिसमें मैंने लाइबिलिटी डाल दी थी 12% के हिसाब से। वो जिस दिन वो सप्लाई करेगा, वो अपना टैक्स इनवॉइस बनाएगा, वो अपनी 5% के हिसाब से लाइबिलिटी फाइनलाइज करेगा, और जो 12% पे उसने ऑलरेडी पे कर रखा था, वो ऑटोमेटिकली ऑफसेट कर देगा। उसके लिए उसको अलग से कोई नई चीज नहीं करनी। यानी वो 5% की लाइबिलिटी बनाएगा, -12% की अपनी जो एडवांस है वो पे कर देगा, ऑटोमेटिकली -7% का उसके पास लाइबिलिटी रहेगी, यानी नेगेटिव लाइबिलिटी रहेगी, जो वो बाकी सारी चीजों के साथ कर सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर मैंने पहले हायर रेट पे दे दिया तो मैं उसको एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। सिस्टम में ऑटोमेटिकली आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी जैसे ही वो सप्लाई कंप्लीट होती है। सर विद दिस वी आर क्लोजिंग आवर डिस्कशन ऑन चेंज इन रेट ऑफ टैक्सेस। अगर यहाँ पे किसी का कोई इश्यू है वो चैट बॉक्स में डाल दे। हम ये जो नेक्स्ट वाली
पार्ट 3 के बाद आई विल टेक दी क्वेरीज की, एक लिमिटेड पार्ट के बाद, कि पार्ट 3 डिस्कस करने के बाद हम पार्ट 2 और पार्ट 3 की क्वेरीज ले लेंगे, यानी चेंज इन रेट के लिए और जो अब हम डिस्कस करना चाहते हैं। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन इज कुछ टैक्सेबल सप्लाईज को एग्जेम्प्ट सप्लाईज में कन्वर्ट किया गया। पहले वो एग्जांपल समझ लेते हैं। तो कुछ फूड सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल चपातीज हो गई, पराठाज हो गए, पिज्जा की ब्रेड्स हो गई, पनीर हो गया, यूएचटी हो गया, जो पहले टैक्सेबल थे अब वो एग्जेम्प्ट हो रहे हैं। सिमिलरली कुछ हेल्थ प्रोडक्ट्स से, कुछ डिवाइसेस से, इंस्ट्रूमेंट से, जो पहले 5 और 12% पे होते थे, जिनको भी अब एग्जेम्प्ट कर दिया है। उसके अलावा कुछ स्टेशनरी और एजुकेशन के प्रोडक्ट्स है, इरेजर, मैप, पेंसिल, शार्पनर्स, एक्सरसाइज बुक्स, अनकोटेड पेपर, ये सारे भी उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिए। कुछ आर्टिस्टिक एंटीक चीजें थी, उनको भी उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया, इंश्योरेंसेज एग्जेम्प्ट कर दी, डिफेंस के आर्टिकल्स एग्जेम्प्ट कर दिए। तो ये सारी चीजें उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दी। अब सर एग्जेम्प्ट करने का मतलब क्या हुआ? एग्जेम्प्ट करने का मतलब ये हुआ कि आपने सेक्शन 18 सबसेक्शन 4 जैसा प्रोविजन उनके साथ अप्लाई कराने की स्टार्ट कर दी। अब एज्यूम करते हैं कि मेरे पास सिर्फ इरेजर का स्टॉक पड़ा हुआ था, मेरे पास इरेजर का स्टॉक पड़ा हुआ था। इरेजर पहले 5% पे टैक्सेबल था, अब 0% पे है। अब क्योंकि वो 0% है, यानी एग्जेम्प्ट हो चुका है, तो मेरे को उस पर कोई आउटपुट लाइबिलिटी देनी नहीं है। लेकिन सेक्शन 18 सबसेक्शन 4 बोलता है कि अगर आपका प्रोडक्ट टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट में चला जाता है, तो आपको जो ओपनिंग स्टॉक है, यानी 21 सितंबर की रात या 22 सितंबर की मॉर्निंग पे जो इरेजर का स्टॉक है, उसका पूरा आईटीसी आपको रिवर्स करना है। आपको आईटीसी, अगर आपने कोई कैपिटल, आप इरेजर के मैन्युफैक्चरर हो, आप और कुछ नहीं करते हो, आप सिर्फ इरेजर ही बनाते हो, तो आपने उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी भी ले रखी थी। अब क्योंकि आपका प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट हो रहा है, तो आपको प्रो राटा बेसिस के ऊपर उस प्लांट एंड मशीनरी का आईटीसी भी रिवर्स करना पड़ेगा, सेक्शन 18 सबसेक्शन 4। ये वन टाइम इम्पैक्ट सबको लेना पड़ेगा, जो 21 सितंबर की रात को 22 सितंबर की मॉर्निंग पे जो ओपनिंग स्टॉक है, 21 का क्लोजिंग या 22 का ओपनिंग, इस स्टॉक के ऊपर उनको अपने रिवर्सल्स को ट्रिगर करना पड़ेगा, उनके पास ऑप्शन नहीं है। इस ये तो हो गया वन टाइम इम्पैक्ट। अब ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है, ये एज प्रोफेशनल वी हैव टू सी कि ये तो उनको डेबिट करना पड़ेगा। आपके क्रेडिट लेजर में कोई अमाउंट पड़ा है नहीं पड़ा, इससे कोई लेना देना नहीं है, दिस इज द लाइबिलिटी दैट यू हैव टू क्रिएट। उसके बाद क्या हो गया कि जब इसके अंदर एक और है ये, अब जैसे मोटर व्हीकल्स है, मोटर व्हीकल्स यहाँ पे सेस लगता था, अब सेस तो एबॉलिश हो रहा है मोटर व्हीकल से। जब सेस खत्म ही हो जाएगा, तो जो भी स्टॉक में मोटर व्हीकल रहेगी उनके लिए तो वो 101% कॉस्ट बनेगी बनेगी, यानी उनको सारा जीएसटी अपने पीएनएल में लेके जाना पड़ेगा और उस कॉस्ट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। उस जीएसटी पे इनकम टैक्स का एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, बट ओवरऑल वो कॉस्ट उनकी हिट होगी ही होगी। नेक्स्ट इज ऑनगोइंग इम्पैक्ट। ऑनगोइंग इम्पैक्ट क्या होगा सर? रूल 42, रूल 43। अब एज्यूम करते हैं कि मैं स्टेशनरी की सारी आइटम्स में डील करता हूँ। 50% आइटम्स, पेंसिल, शार्पनर्स, मैप्स, जो मेरे रजिस्टर्स होते हैं उसमें थी, 50% अदर देन दैट है। अब 50% एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, 50% टैक्सेबल हो जाएगी। आप उसके ऑडिटर हो, आपने उसको इनवॉइस बना के दिया, उस इनवॉइस का भी उसको क्रेडिट 50-50 मिलेगा। मैं परसेंटेज 50-50 बोल रहा हूँ, 70-30 हो सकती है, 80-20 हो सकती है, 10-90 हो सकती है, वो आपको केस स्पेसिफिक देखना है। यानी विद इफेक्ट फ्रॉम 22 सितंबर, अब उसको हर महीने कुछ क्रेडिट मिलेगा, कुछ क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा, उसको रूल 42, रूल 43 की कंप्लायंस करनी पड़ेगी। और कहाँ कहाँ करनी पड़ेगी? अगेन सर, ये इफेक्टिवली 17 प्रोडक्ट्स हमने लिस्ट डाउन करे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो 17 चैप्टर तो मोटा मोटा अगर इसमें मैं कवर करूं, तो इट विल से हैव एटलीस्ट 1700 प्रोडक्ट्स। कम से कम 1700 प्रोडक्ट्स के ऊपर अब आपको ये करना पड़ेगा। तो अगेन ये लिस्ट सर सिर्फ इलस्ट्रेटिव है, आपको जो एक्चुअल लिस्ट आई है उनको रेफर करना है, सो दैट कहीं पे कोई मिस्टेक या एरर ना रहे। बट जहां पे भी टैक्सेबल टू एग्जेम्प्ट हो रहा है, वहां पे वन टाइम डेंट भी आएगा और रेकरिंग डेंट भी वहां पे उन लोगों को फील होगा। नेक्स्ट इज इसी का एक्सटेंशन। तो कुछ तो उन्होंने बोला टैक्सेबल से सीधा एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, और कुछ में उन्होंने बोला सर हम टैक्सेबल से विदाउट आईटीसी कर रहे हैं।
यानी टैक्सेबल है, आज भी टैक्सेबल है, लेकिन अब आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। इसमें उन्होंने सबसे पहली कैटेगरी क्या बोली? होटल एकोमोडेशन। होटल एकोमोडेशन में पहले क्या रेट लग रहा था? 12%। अगर आपके रूम रेंटल की वैल्यू 7500 से कम थी। 7500 एंड अबव वो था 18%। 7500 एंड बिलो इट वॉज 12%। न्यू रेट इज 5% विदाउट आईटीसी। अब सर इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट देखिए। केस वन, जब पुराना नया रेट लग रहा है तो 7,000 पे, उस पे जीएसटी 5%, 350, टोटल हो गया 7350। अब आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे, आपने एक एक्स्ट्रा बेड लगवा दिया, एक्स्ट्रा बेड के 1,000 पे ले लिए। सेम रूम, 7,000 वाला ही रूम है, आपने उसमें एक्स्ट्रा बेड लगवा दिया, उसके 1,000 पे एक्स्ट्रा हो गए, तो रूम रेंटल कितना हो गया? 7,000 की जगह 8,000। अब जैसे ही वो 7,500 एक्सीड करेगा, रेट क्या हो जाएगा सर? 18% हो जाएगा। तो 8,000 के ऊपर 18% जीएसटी जब लगेगा तो इट विल बी 1440। टोटल हो जाएगा 9,440। अब देखिए डिफरेंशियल कितना आया? 1,000 पे टोटल रूम रेंटल बढ़ा, 1,000 पे टोटल रूम रेंटल बढ़ा, और जीएसटी बढ़ गया 1090 का। यानी रूम रेंटल से भी 90 रुपए ज्यादा का मेरा इम्पैक्ट आ गया उसकी टोटल वैल्यू के ऊपर, सिर्फ जीएसटी जीएसटी का। तो ये एक बहुत मेजर इम्पैक्ट है। स्पेशली जो होटल्स इस रेंज में थे 7 to 8 की, उनको ये बहुत फिल्टर होगा। अब आप देखेंगे या तो होटल 7,000 के नीचे जा रहे होंगे या 8-9 हजार प्लस जा रहे होंगे। बीच की एक वैल्यू के अंदर हमें अब होटल दिखने को नहीं मिलेंगे। तो अब इसका सर दूसरा इम्पैक्ट क्या आएगा? अगर एक होटल है जिसके अंदर रूम रेंट सिर्फ 5,000 का ही होता था, 4,000 रुपए का ही होता था, अब गोइंग फॉरवर्ड उसका रेट हो गया 5% विदाउट आईटीसी। और फ्यूचर में उसको पता है कि उसकी कोई बड़ी सप्लाई होगी ही नहीं, 7,500 से ऊपर का रूम रेंटल आएगा ही नहीं। उसको जितना भी आईटीसी स्टॉक कोई कंज्यूमेबल का पड़ा हुआ है वो रिवर्स करना पड़ेगा। जो भी कैपिटल गुड्स का क्रेडिट उसने लिया है उसको प्रोराटा बेसिस पे उसको रिवर्स करना पड़ेगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी ये वन टाइम हिट उन लोगों को डालना पड़ेगा। सेकंड क्या है? अगर कोई बड़ा होटल है जिसके पास 5,000 का भी रूम है, 10,000 का भी रूम है, जिसके पास आज 5% के भी नया रेट आएगा विदाउट आईटीसी और 18% विद आईटीसी वाला भी आएगा, उनको हर महीने रूल 42, रूल 43, यानी कुछ प्रोराटा क्रेडिट मिलेगा, कुछ क्रेडिट उनको रिवर्स करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रूल 42, रूल 43। तो ये आया होटल इंडस्ट्रीज के ऊपर, जहां पे विदाउट आईटीसी का इम्पैक्ट है। इसी की सेकंड कॉन्टिन्यूएशन में आया ब्यूटी एंड फिजिकल वेलबींग सर्विसेज। ब्यूटी और फिजिकल वेलबींग सर्विसेज में क्या क्या आ गया सर? आपके आपके हेल्थ क्लब आ गए, जिम्स आ गए, बार्बर्स आ गए, सलून्स आ गए। यहाँ सब में भी उन्होंने क्या किया? 18% विद आईटीसी से 5% विदाउट आईटीसी, यानी गोइंग फॉरवर्ड इनको भी आईटीसी नहीं मिलेगा। मेरा अपना मानना है कि अगर कोई सैलून है तो उसके पास सैलून सर्विसेज ही होंगी। वो पहले 18% पे थी, अब 5% विदाउट आईटीसी पे है। यानी सैलून को तो अपना पूरे का पूरा क्रेडिट अब रिवर्स करना पड़ेगा, जो ओपनिंग क्रेडिट उसका स्टॉक का पड़ा हुआ है या कैपिटल गुड्स का पड़ा हुआ है। तो ये सारे क्रेडिट्स अब उन लोगों को अपने एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे। एंड गोइंग फॉरवर्ड तो उनका कोई क्रेडिट होगा ही नहीं, तो वो नया तो एक्यूमुलेट कर ही नहीं पाएंगे। अगेन अ बिग डेंट जो इस इंडस्ट्री से डील कर रहे हैं, उनको वन टाइम इम्पैक्ट यहाँ पे फील होगा। सिमिलर इम्पैक्ट 2017 में भी आया था, जब रेस्टोरेंट और केटरिंग सर्विसेज को बोला गया था कि आप 12% विद आईटीसी की जगह 5% विदाउट आईटीसी जाए। वहां पे भी ये इम्पैक्ट आया था। ये सेकंड टाइम है जब दो मेजर सर्विसेज के ऊपर, एक होटल और दूसरी आपकी फिजिकल वेलबींग, यहाँ पे ये इम्पैक्ट आ रहा है। बिफोर मूविंग अहेड विद पार्ट 5, इफ यू हैव एनी क्वेरीज आप उसको चैट बॉक्स में डाल दीजिए, पहले उसको डिस्कस करेंगे फिर हम आगे की साइड एक्सीड करेंगे। Anyone has any queries, they can post in the chat box. अभी तो चैट बॉक्स पे कोई क्वेरी नहीं है, तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि एक है अगर मेरी कॉन्टिन्यूअस सप्लाई चल रही है, ओवरलैपिंग सप्लाई चल रही है, यानी 21 सितंबर से पहले भी है और उसके बाद भी है, तो मेरे को कौन सा सेक्शन 14 रीड करके अपना कंक्लूजन लेके आना।
उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर मैं टैक्सेबल टू एग्जेम्प्ट जा रहा हूं तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, अगर मैं टैक्सेबल टू टैक्सेबल विदाउट आईटीसी जा रहा हूँ उसका क्या इम्पैक्ट होगा। सो ब्रॉडली अभी हमने ये तीन चार कैटेगरीज को कवर की है। अब हम जा रहे हैं स्पेसिफिक सेक्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगेन सर, इस पूरे प्रोसेस के अंदर वी विल नॉट बी एबल टू कवर ईच एंड एवरी आइटम। सो जो मेजर सेक्टर्स है, मेजर इंडस्ट्रीज है, आई हैव ट्राई टू कवर दो सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज, और उसका क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आ रहा है वो मैंने यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करी। तो सबसे पहले आया सर इम्पैक्ट रिन्यूएबल एनर्जी को। सो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर सोलर पैनल, सोलर कुकर, बायोगैस प्लांट, सोलर प्लांट, सारी चीजें यहाँ पे कवर होती थी। तो पहले इनके ऊपर क्या रेट होता था, 12% का। इसमें सर आप लास्ट आइटम देखेंगे तो वो आपके सोलर जो है, फ्यूल सेल मोटर व्हीकल्स, हाइड्रोजन व्हीकल्स, जो पहले 12% पे थे, यानी अब वो व्हीकल्स 5% पे भी आ। नाउ इट सेज कि वो 12% की जगह पे 5% की आपकी आइटम बन गई। अब सर 5% की आइटम बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको इवेंचुअली हर चीज के ऊपर पाँच। सोलर कुकर बहुत इजी, आप मार्केट में गए, जो पहले 12% जीएसटी लग रहा था अब उस पर 5% लगेगा। लेकिन अगर आप अपनी रूफ टॉप के ऊपर सोलर पैनल लगवाना चाहते हो, आप अपने यहाँ पे कोई वो जो आजकल विंड मिल वाले आ रहे हैं वो लगाना चाह रहे हो, तो वहां पे क्या था, वहां पे गवर्नमेंट ने बोल रखा था कि वी विल एज्यूम, बट जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सिविल वर्क भी इंक्लूडेड है, तो एक डीम्ड वैल्यू उन्होंने डाली थी 70% फॉर गुड्स, 30% फॉर सर्विसेज। ये डीम्ड वैल्यू यानी अगर आप सोलर रूफटॉप लगा रहे हो और आपने ऑल इंक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट अपने सप्लायर को दे दिया है, तो डीम्ड वैल्यू क्या थी, 70% गुड्स की मानी जाएगी, 30% सर्विसेज की मानी जाएगी। तो पुरानी सिचुएशन में क्या होता सर, वो 70 रुपीज के ऊपर 12% लगाता, 30 रुपीज के ऊपर 18% लगाता, उसका इफेक्टिव टैक्स रेट कितना आता, 13.80%। अब विद इफेक्ट फ्रॉम 22 सितंबर क्या होगा, वो पूरे पे पहले लगाएगा 70% पे 5%, 12 की जगह 5, तो इफेक्टिव रेट हो जाएगा 3.5। 30% पे पहले भी 18% लगता था, आज भी 18% लगेगा, टोटल हो गया 8.9। तो इफेक्टिव जो टैक्स रेट होगा वो 4.90% कम होगा, ना कि जो विजिबिलिटी के अंदर आ रहा है कि पूरे का पूरा 7% का बेनिफिट है, वो विजिबल नहीं होगा। यानी यहाँ पे आप जो सोलर पैनल आप 21 सितंबर से पहले लगवा रहे थे और जो अब लगवाएंगे, वहां पे 5% आपकी सेविंग हो जाएंगे। बहुत सारे लोग सोलर प्लांट बड़े बड़े लगने लग गए थे, जो कुसुम प्लांट्स बहुत बड़े बड़े लग रहे थे, वो सारे अब बहुत कंपेटिटिव होने लग जाएंगे, उनकी प्राइसिंग रिड्यूस होंगी, क्योंकि उनका सबसे मेजर इंग्रेडिएंट क्या होता था, ऑलमोस्ट 50-60% का इंग्रेडिएंट ही पैनल्स होते थे। पैनल के ऊपर सीधा 7% में मेरा टैक्स रेट खत्म हो गया। पैनल से मैं क्या बनाता था, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एग्जेम्प्ट होती थी, किसी को टैक्स नहीं देना होता था, तो सोलर पैनल का कभी इनपुट भी नहीं बनता था। तो यानी इस इंडस्ट्री में अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर सोलर, स्पेसिफिकली अगर सोलर एनर्जी के साथ डील कर रहे थे, अब आपका सीधा 7% पैनल की कॉस्टिंग पे इम्पैक्ट आएगा, जो कि बहुत बेनिफिशियल है। जिन्होंने पहले लगवाए थे उनका डिफरेंट है, वो 7% महंगे हैं, गोइंग फॉरवर्ड वो 7% सस्ते हो जाएंगे। अब इशू ये आ रहा है, या हम लोगों को डिस्कशन ये करना है कि सर ये इवेंचुअली रेट्स क्या पास ऑन होंगे एंड कस्टमर को। क्या जो पहले चीज 100 रुपए की थी, 18% जीएसटी लगता था, 118 का लगता था, अब उस पे एज्यूम करते हैं 5% जीएसटी आ गया, तो क्या वो 118 की जगह 105 की मिलेगी एंड कस्टमर को। तो इसका क्या होगा, कैसे होगा, अभी हम इसी पार्ट के यानी फिफ्थ पार्ट के लास्ट एंड पे वी विल डिस्कस कि कैसे गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एंश्योर कि वो जो बेनिफिट है वो एंड कस्टमर तक भी पास ऑन हो जाए। नेक्स्ट इज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। सर तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पे सबसे ज्यादा बेनिफिट आया कि जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जो पहले 28% के ऊपर थे, जिनको लग्जरी गुड्स माना गया था, उन सबको उठा के अब इन्होंने 18% की कैटेगरी पे ले आए हैं, एंड इसको उन्होंने एट पार कर दिया विद अ नॉर्मल हाउस होल्ड इक्विपमेंट। तो इसमें आपके एसी आ गए, डिश वॉशर आ गए, टेलीविजन सेट्स आ गए, प्रीडोमिनेटली तीन चीजें आई हैं, एसी, डिश वॉशर्स और टेलीविजन सेट्स, जिनको पहले लग्जरी माना गया था, अब उनको उन्होंने नॉर्मल हाउस होल्ड इक्विपमेंट मान के 18% की कैटेगरी में आ गए। अगेन दिस इज अ वेरी गुड बेनिफिट, अगर किसी को करना था उसका 10% जो प्राइस है वो मोर और लेस रिड्यूस हो जाएगा, यानी जो चीज पहले 1 लाख की आ रही थी 90,000 की आ जाएगी।
जो 50,000 की आ रही थी वो अब 45,000 की पड़ने लगे। फिर फूड आइटम, सर यहाँ पे आई थिंक द गवर्नमेंट हैज डन अ ट्रमेंडस जॉब। यहाँ पे उन्होंने कुछ आइटम्स को हमने पहले देखा, उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। बाकी मोर और लेस 99.99% आप आंखें बंद करके बोल सकते हो फूड आइटम या तो अब 5% पे चलेगी है या 8 एग्जेम्प्ट हो गई है। एक्सेप्ट वन और टू जिसको अभी हम लास्ट में लग्जरी में या फिर डीमेरिट गुड्स में पढ़ेंगे 40%। अदर देन दैट गवर्नमेंट ने फूड आइटम्स को या तो प्योरली एग्जेम्प्ट कर दिया है या फिर 5% ब्रैकेट में ले आए हैं। इसमें सर मैं आपको जो अभी स्लाइड सामने है, उसको 7 पॉइंट रीड करिए। चॉकलेट्स एंड अदर फूड प्रिपरेशन कंटेनिंग कोका, यानी चॉकलेट्स को जनरली लग्जरी प्रोडक्ट मानने की कोशिश होती थी, उसको भी 18 से 5% में किया है। बाकी सारी चीजें तो यहाँ पे आई आई। तो दिस इज अ वेरी गुड, ये एंड रिजल्ट यानी जो हमारी एंड कस्टमर के पास आप और मैं एज कंज्यूमर यूज करते थे, इसका इम्पैक्ट वहां तक हम लोगों को फील होगा और डेली बेसिस पे फील होगा। एंड इवेंचुअली अगर ये मंथ ऑन मंथ हमारे को बेनिफिट पास ऑन होते रहे तो हमारे जो मंथली ग्रोसरी के बिल से उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। अगेन सर ऑल दीज लिस्ट्स आर इलस्ट्रेटिव। आपको फाइनल लिस्ट अपने क्लाइंट के लिए जब आप देख रहे हैं तो आपको HSN वाइज उसको मैच करना पड़ेगा। एंड आई एम नॉट रीडिंग ईच एंड एवरी आइटम क्योंकि वो फिर अननेसेसरी हो जाएगा। वी आर हेयर टू डिस्कस दी कॉन्सेप्ट कि अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी में चेंज आया है, ठीक है, उसके बाद फूड आइटम्स के ऊपर चेंज आया है, ओके। कंज्यूमर प्रोडक्ट जो पहले मेरे एसीज होते थे, टीवीज होते थे, तो यहाँ पे एक ब्रॉड आइडिया में मिलता जा रहा है। तो अगर हमारा क्लाइंट उस सेक्टर के साथ डील करता है तो वी नो कि हमें यहाँ पे पढ़ के उसके एग्जैक्ट रेट्स को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट इज डेली यूज गुड्स। यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है कि जो हमारे किचन के अंदर प्रोडक्ट्स होते थे, जो हमारे वॉशरूम के अंदर प्रोडक्ट्स होते थे, बाथरूम में प्रोडक्ट्स होते थे, गवर्नमेंट ने उन सबको उठा के 5% की कैटेगरी में लाने। वेदर इट इज टूथ पाउडर, अम्ब्रेलाज, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम, सोप, सारी चीजों को उठा के उन्होंने 5% पे डाला। अगेन अ वेरी गुड स्टेप, क्योंकि अब ये पास ऑन भी होगा बेनिफिट, तो इवेंचुअली हमारे ग्रोसरीज के जो बिल है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा इसका बेनिफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज अनदर बेनिफिट जो विद GST 2.0 जो नए लेटेस्ट चेंजेस हैं वो लेके आ रहा। नेक्स्ट इज टेक्सटाइल सेक्टर एंड फुटवेयर। सर यहाँ पे भी एक सेम इशू आया, पहले तो कॉन्सेप्चुअली कर लेते हैं। तो 2500 रुपये उन्होंने पैरामीटर बना दिया, 2500 रुपये के नीचे, 2500 रुपये के ऊपर। 2500 रुपये के नीचे 5%, 2500 रुपये के ऊपर 18%। यानी अगर आप 2499 रुपए की कोई चीज ले रहे हो तो उसके ऊपर 5% है, 2501 की ले रहे हो उसके ऊपर 18% है। मैंने नीचे इलस्ट्रेशन में लिखा है। अगर मैं अपैरल या फुटवेयर 2400 रुपये का लेता हूँ तो उस पर 5% GST लगेगा, विच इज 2520। और यही अगर 2600 का है तो उस पर GST 18% का हो जाएगा। और 200 रुपये महंगा करने की वजह से ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो 548 रुपीज महंगा हो जाएगा। क्यों? 548 में से 200 रुपये तो प्रोडक्ट के हैं, 348 रुपीज GST के हैं। सो ये एक मेजर, जिसे बोलते हैं ना, वो चैलेंज क्रिएट हो रहा है कि अगेन आप कोशिश कर रहे हो कि एक पर्टिकुलर ब्रैकेट में कोई सेल ही ना हो पाए। 2500 से 3000 3500 की अब फिगर के अंदर अगर आप सेल करने जाओगे तो लोगों को लगेगा यार टैक्सेस बहुत ज्यादा आ जा रहे हैं, तो इट इज बेटर कि हम उसको 2499 कर दें। कम से कम 5% पे टैक्स रुकेगा और वो प्रोडक्ट जो है वो अफोर्डेबल हो जाएगा, वो बेटर कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो अगेन गवर्नमेंट का इंटेंट अच्छा है कि लोअर वैल्यू प्रोडक्ट्स जो हैं, जो हम डेली यूज में कपड़ा पहनते हैं वो भी 5% पे आ गए, जूते पहनते हैं वो भी 5% पे आ गए। लेकिन जैसे ही 2500 के ऊपर जाएंगे वो उसको थोड़ा सा एक, मैं लग्जरी गुड्स तो नहीं बोलूंगा क्योंकि वो 28 या 40% की कैटेगरी होती थी, बट उसको फिर उसने बोला कि ये आप चॉइस से पहन रहे हो, इट इज नॉट अ डेली वेयर, इट इज नॉट योर नेसेसिटी, इट इज अ चॉइस दैट यू हैव नाउ टेकन, तो इसलिए आपको उस पर 18% देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें मैं बात करूंगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और रियल एस्टेट बिल्डर्स की। तो यहाँ पे क्या हो गया सर, आ, कुछ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 12% पे रह गए थे, बहुत लिमिटेड कैटेगरी थी। विद इफेक्ट फ्रॉम 22 सितंबर अब 12% का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का रेट ही खत्म हो गया है। अब जितने भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे दोज वुड बी चार्जेबल टू GST एट द रेट ऑफ 18%। यानी 22 सितंबर के बाद सिर्फ 18% का रेट रह जाएगा।
सीमेंट के रेट रिड्यूस हो गए, 28% से 18% हो गया। जो सैंडलाइन ब्रिक्स होती थी 12 से 5 होगी, मार्बल्स 12 से 5 हो गए, चाहे ग्रेनाइट ले लो चाहे दूसरा ले लीजिए, सारे 12 से 5 हो गए। एंड रिजल्ट क्या, अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं, सीमेंट की बात करूं, मार्बल्स की बात करूं, ये मोर और लेस 20-30%, या मैं अगर सीमेंट बात करूं 20% एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का खर्चा होता है। मार्बल्स की बात करूं तो 10 से 15% होता है। तो एटलीस्ट 30-35% के ऊपर रेट रिड्यूस हुआ है। तो क्या रियल एस्टेट के प्राइसेस थोड़े से रिड्यूस होना स्टार्ट होंगे? अगेन अ क्वेश्चन मार्क। होंगे नहीं होंगे, मैंने लास्ट में वी विल डिस्कस कि गवर्नमेंट क्या मैकेनिज्म लाने की कोशिश कर रही है नहीं कर रही है, एवेंचुअली पास ऑन होगा या नहीं हो। तो 5.6 हो गया, जहां पे हमने देखा कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और रियल एस्टेट यानी आप घर बनाने के अंदर भी थोड़ी सी कॉस्टिंग रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं सर्विसेज को लेके। सर बहुत सिंपल है, चाहे गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो चाहे पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन हो, मोर और लेस गवर्नमेंट ने क्या रूल कर दिया है, या तो 5% विदाउट आईटीसी कर दिया या 18% विद आईटीसी। 5% विदाउट आईटीसी या 18% विद आईटीसी, 90% जगह पे आप ये थंब रूल लगा के चल सकते हैं। इसका एक ही एक्सेप्शन है, नॉन इकॉन बिजनेस क्लास एयर ट्रेवल। बिजनेस क्लास एयर ट्रेवल पे उन्होंने बोला 18% विद आईटीसी। उसके अलावा आप कोई भी कैटेगरी उठा लीजिए, उन्होंने बोला 5% विदाउट आईटीसी, 18% विद आईटीसी। सर यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक क्लेरिफिकेशन दे देता हूँ। हम जो रेट डिस्कस कर रहे हैं सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। हम जब बोलते हैं विदाउट आईटीसी, इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सप्लायर, यानी सप्लायर को आईटीसी नहीं मिलेगा। सप्लायर ने इनवॉइस बनाया, 5% टैक्स लगाया, उसको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। वो इनवॉइस आपने रिसीव किया एज रेसिपिएंट। हम यहाँ पे रेसिपिएंट की आईटीसी की बात नहीं कर रहे। रेसिपिएंट का आईटीसी चलेगा, क्या वो टैक्सेबल सप्लाई दे रहा है? हाँ, तो उसको क्रेडिट की पहली एलिजिबिलिटी का टिक आ गया। क्या वो 17.5 में ब्लॉक्ड है? तो आंसर है यस, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर 17.5 में वो ब्लॉक नहीं है और आप 100% टैक्सेबल सप्लाई करो, आपको आईटीसी मिलेगा। यानी विदाउट आईटीसी की कंडीशन सिर्फ और सिर्फ सप्लायर पे लग रही है, वो रेसिपिएंट पे नहीं लग रही है। तो ये आपको मेक श्योर करके चलना है कि इसको गलत इंटरप्रेट नहीं करेंगे कि रेसिपिएंट का आईटीसी डिसअलाउ हो रहा है, ऐसा कोई कानून यहाँ पे नहीं है। तो ये अगेन उसी की कैटेगरी है, तो उसमें सेम है कि आप कोई भी फॉर्म पकड़ लीजिए, बड़ा सिंपल से बोल रहा, 5% विदाउट आईटीसी या 18% विद आईटीसी, चाहे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो चाहे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। इसमें एक एस्केप या एक चेंज मैं आपको थोड़ा सा करूंगा। सबसे पहले है वो, अगर एक मोटर व्हीकल जो 40% के रेट के ऊपर आता है, अगर मैं उसकी लीजिंग या रेंटिंग करूंगा, तो गवर्नमेंट ने बोला जो 40% का प्रोडक्ट है वो 40% पे लीज करेंगे, ओ 18% पे लीज देने का ऑप्शन दे देंगे, तो सब लोग क्या करेंगे, 40% की जगह 18 पे भागेंगे। तो इन्होंने इसको बोला कि भैया आपको भी 40% की लीजिंग मिलेगी। यानी अगर कोई गुड्स 40% पे जीएसटी लगता है, उसकी लीजिंग भी 40% पे होगी, उसका रेंटल भी 40% पे जाएगा। यानी एज इट इज मैंने गुड्स आपको दे दिया विदाउट ऑपरेटर, मैंने गाड़ी आपको रेंटल पे दे दी महीने के, तो उस पे आपको 40% ही देना पड़ेगा। सेकेंड है, अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हो गुड्स कैरेज की, तो वहां पे 5% विद आईटीसी का उन्होंने सपोर्ट आपको दिए। पूरे प्रोसेस के अंदर जब आप ये देखते हो, तो इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट ट्रांसपोर्टेशन वालों को हुआ है। कैसे हुए? सर पहले मोटर व्हीकल्स के ऊपर सेस लगता था, अब सेस नहीं लगेगा। अगर वो अवेन आईटीसी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, तो पहले 12-13% उनकी व्हीकल की कॉस्ट बना ही करती थी, क्योंकि सेस का आईटीसी नहीं मिलता था। लेकिन अब सेस तो रह नहीं गया, चाहे 40% जीएसटी हो गया, तो भी उनको आईटीसी तो मिलेगा, ओवरऑल कॉस्ट तो रिड्यूस होगी। वो एक साल बाद जाके उसका आईटीसी रिकवर होगा, लेकिन इवेंचुअली रिकवर होगा, कॉस्ट कम होगी, उसका भी एक बेनिफिट इवेंचुअली हम लोगों को आता हुआ दिखेगा। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से रिलेटेड। देन जॉब वर्क से रिलेटेड, तो जॉब वर्क के अंदर उन्होंने बहुत सिंपल कर दिया। अगर कोई स्पेसिफिक है, आप डे टू डे यूज आइटम के लिए कर रहे हो, तो उसका जॉब वर्क 5% पे हो गया। बैलेंसिंग जो रेसिडुअल फिगर है उसको 18% पे ले गए। यानी अगर कोई डे टू डे यूज, फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला आप देख लीजिए, ब्रिक्स को आप देख लीजिए, उन सबको उन्होंने बोला ये तो डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं, इनको 5 पे ही कर दीजिए।
अदर देन दैट बाकी सारे जॉब वर्क आपके 18% की कैटेगरी के अंदर चले गए। पहले 12 और 18 की कंफ्यूजन होती थी क्योंकि दो कैटेगरी थी रेसिडुअल, एक थी सप्लाई ऑफ जॉब वर्क और एक था नॉट एल्सवेयर कवर्ड। अब वो कंफ्यूजन भी खत्म हो गई कि भैया जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, प्रिंसिपल रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, अब सब खत्म। अब सिर्फ दो ही कैटेगरीज है, या तो 5% वाली, यानी अगर आपकी स्पेसिफिक आइटम कवर्ड है तो 5% में आ जाएगा, अगर स्पेसिफिक आइटम आपकी नहीं है तो आपको रेसिडुअल रेट 18% का लगेगा। पहले क्या होता था, अगर आपका 5% पे नहीं है तो 12% और 18% दो रेट होते थे। तो जॉब वर्कर ये देखता था कि सामने वाला जो उसका कस्टमर है, जो उसका प्रिंसिपल है, जिसका माल उसने भेजा है, वो रजिस्टर्ड है तो 12%, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो 18%। तो वो जॉब वर्कर का चैलेंज अब यहाँ पे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज मोटर व्हीकल्स। तो मोटर व्हीकल्स में सर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं टू व्हीलर्स। तो टू व्हीलर्स के अंदर ओवरऑल रेट कम हुआ है एक्सेप्ट 350 सीसी से ज्यादा मोटर व्हीकल्स का। तो सबसे पहले जो नॉर्मल मोटर व्हीकल टू व्हीलर्स होती थी, उन जो 350 सीसी से कम होती थी, उसका रेट 28 से 18 हो गया। यानी नॉर्मल 350 सीसी से कम वाली बाइक्स पे नाउ वी विल बी पेइंग 10% लेस। बट अगर वो 350 सीसी से ज्यादा की बाइक है तो पहले उसके ऊपर 28% का रेट होता था, 3% का सेस होता था, इफेक्टिव रेट हुआ 31%। नाउ इट इज 40%, यानी यहाँ पे उनका रेट इंक्रीज हो गया। जो पहले 31% था, नाउ इट इज 40%। बाईसाइकिल्स जो हम अपने बच्चों के लिए यूज करते थे, या टू मतलब हम अपने लिए भी कर सकते हैं, द रेट हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 12% टू 5%। बाईसाइकिल की एसेसरीज का भी 12% टू 5%, और मोटर व्हीकल्स की एसेसरीज का 18%, जो पहले 28% होता था। सो ओवरऑल टू व्हीलर सेगमेंट में, एक्सेप्ट अगर आप, अब मैं इसको 350 सीसी प्लस बोलूंगा, दैट दिस इज नॉट अ नेसेसिटी, इट इज नॉट अ डेली यूज प्रोडक्ट, इट इज अ काइंड ऑफ टू शो योर स्टेचर। तो जब आप वो कर रहे हो तो आपको 40% देना है, अदरवाइज अब आपको कुछ नहीं देना है। अदरवाइज बेयर मिनिमम 5% नॉन मोटराइज पे आ गया, मोटराइज के ऊपर 18% कैटेगरी आ गई। 12% तो अब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो वहां तो होगा ही नहीं, या तो 5 या 18, और उसके अलावा 40% पे आपके प्रोडक्ट्स चलेंगे। अगर आप कोई एयरक्राफ्ट पर्सनल यूज में ले रहे हो तो पहले 31 था, अब 40। यार्ड्स ले रहे हो, रोइंग बोट्स ले रहे हो, तो उसके अंदर रोइंग बोट्स और कैनॉन्स कैन्स के अंदर आपका रेट रिड्यूस हुआ है, बाकी सब के अंदर 40% चला गया। अगेन ये वाला सेगमेंट बहुत डेली यूज का नहीं है, मैं इस पर टाइम डिवोट कम कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज मोटर व्हीकल फॉर पब्लिक यूज। अब पब्लिक यूज के अंदर सर एक अच्छा बेनिफिट गवर्नमेंट ने पास ऑन किया। पहले भी इसके ऊपर सेस नहीं लगता था, पहले भी इन पे सेस नहीं लगता था। अब क्या किया, ट्रैक्टर, छोटे ट्रैक्टर जो 1800 सीसी से कम थे, उनको 5% पे ले आए, बाकी सबको 18% पे। अब चाहे आप थ्री व्हीलर ले रहे हो, आप ट्रक ले रहे हो, आप कोई भी चीज ले रहे हो, वो सारी आपकी 18, बस है वो भी 18% पे। यानी जो पहले 28% पे मोटर व्हीकल्स होते थे पब्लिक यूटिलिटी वाले, वो रिड्यूस होके अब आपके 18% पे आ गए। अगेन ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट को उन्होंने रिड्यूस किया। तो पहले तो उनको विद आईटीसी के अंदर ऑप्शन मिल गया, सेकेंडली उसके रेट्स भी कम हो गए। तो ये सेगमेंट के अंदर भी वी आर होपफुल कि एक अच्छा चर्न क्रिएट होना चाहिए। नेक्स्ट इज मोटर व्हीकल जो आप और मैं यूज करते हैं सर, इसमें दो हैं, एक है पेट्रोल इंजन, एक है डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन के ऊपर पहले रेट होता था सर, नीचे वाली है स्पार्क इग्निशन वाली, उसके अंदर रेट होते, सॉरी, हाँ नीचे वाले, अगर 1200 सीसी से कम की है तो 28% का रेट होता, और अगर 1200 सीसी से ज्यादा है तो उस पे 15% सेस लगता था, इफेक्टिव रेट 43% होता था। अब उन्होंने बोला अगर पेट्रोल इंजन है, 1200 सीसी से कम है तो न्यू रेट इज 18%, और अगर 1200 सीसी से ज्यादा है तो नया रेट 40% है। ऐसे ही अगर आप डीजल इंजन की बात करो तो पहले उसमें 48%, 50% तक का भी रेट चला जाता था, क्योंकि सेस 20-20, 22-22% था। अब वो हो गया 1500 सीसी से ज्यादा 40%, 1500 सीसी से कम 18%। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बोले, अगर पेट्रोल इंजन 1200 सीसी या डीजल इंजन 1500 सीसी से कम है तो उसका रेट हो गया 18%। यानी आप मैं अगर 10 लाख रुपए तक की एवरेज की गाड़ी ले रहे हैं तो वहां पे 10% रेट कम हो गया है। और अगर हम 1500 सीसी डीजल, 1200 सीसी डीजल पेट्रोल के ऊपर जा रहे हैं तो वहां पे भी रेट कम हुआ है, 3% से लेके 10% तक का इम्पैक्ट वहां पे भी आया है, लेकिन वो हम लोगों को देखना पड़ेगा।
इसी के अलावा अगर एलपीजी कार है तो वो पहले 28 पे होती थी, वो 18 पे आ गई। आपके जो ई व्हीकल्स है वो पहले 12 पे होते थे, अब 5 पे आ गए। एक डीजल ड्रिवन इंजन, ये 1500 सीसी एक एक्सेप्शनल आइटम है अगेन। अगर 1500 से ज्यादा भी है तो भी उन्होंने 18 पे किया है। तो 21 नंबर एक एक्सेप्शन है जो अभी हमने लास्ट स्लाइड पे डिस्कस किया था। बाकी ब्रॉडली जो हम लोगों ने किया है कि 1200 1500 स्पार्क सॉरी डीजल और पेट्रोल इंजन, कंप्रेशन इंग्रेशन हो गया आपका डीजल, स्पार्क हो गए आपके पेट्रोल इंजन। तो इस बेसिस पे मोरलेस ये डिफाइंड, अगेन सर इसको रट्टा तो मार नहीं सकते, बट सिंपल वर्ड में अगर आप पेट्रोल की छोटी गाड़ी ले रहे हो तो 18%, पेट्रोल की बड़ी गाड़ी ले रहे हो तो 40%। सेम डीजल के ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हो इस सम रूल। अब आ जाते हैं सर, इतने सारे बेनिफिट पास ऑन करे हैं तो कहीं पे कंपनसेशन भी तो किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट को सरकार चलानी है, आर्मी मेंटेन करनी है, एमएलए एमपी की सैलरी जानी है, तो वो फंड तो चाहिए ही चाहिए। तो कई जगह पे कम किया, उसको कवर अप भी किया। तो कवर अप ऐसा नहीं है कि बहुत सारी जगह पे उन्होंने उसको कवर अप करने की कोशिश करी, कुछ जगह पे किया, कुछ जगह पे रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी से कर दिया, कुछ जगह पे उन्होंने जैसे लग्जरी प्रोडक्ट्स में डाला। तो सबसे पहला चेंज उन्होंने किया, सारी नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस जो पहले 18% पे होती थी उसको बढ़ा के भी 40% पे कर दी। सो ये एक चेंज है जो काफी लोगों को इम्पैक्ट करेगा, कि इसको उन्होंने बेसिकली नॉन हेल्दी प्रोडक्ट की कैटेगरी बना दिया, कि नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस भी जो है वो एक नॉन इफेक्टिव प्रोडक्ट है, कि इट इज नॉट अ वेरी हाइजीनिक प्रोडक्ट और अ वेरी गुड प्रोडक्ट। तो 18 से 40। उसके अलावा पहले जहाँ पे 12% से सेस लगता था, फॉर एग्जाम्पल आपकी पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स होती थी, उसको उन्होंने सेस को हटा के इफेक्टिव रेट को 40% कर दिया। लास्ट कैटेगरी अगर आप देखेंगे तो पिस्टल्स और रिवॉल्वर, जहाँ पे पहले 28% था उसको उन्होंने 40% पे कर दिया। तो इन सिंपल वर्ड्स, फूड के अंदर मैंने आपको बोला था या तो एग्जाम्प्ट या 5% या लग्जरी। तो लग्जरी में क्या ले गए, जितनी भी आपकी बेवरेजेस थी वो सारी अब 40% के ऊपर चली गई। तो आप चाहे अब एरिएटेड ले लीजिए, नॉन एरिएटेड ले लीजिए, अल्कोहलिक ले लीजिए, अल्कोहल तो बेसिकली जीएसटी के बाहर है, नॉन अल्कोहलिक में भी आपका सारा अब 40% का जीएसटी रेट आएगा। इसके अलावा ये थे गुड्स। सर्विसेज के अंदर उन्होंने कैसीनोज के रेट, एडमिशन टू कैसीनोज, रेस क्लब, उसको बढ़ा के कर दिया 40%। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, जिस प्रोडक्ट के ऊपर 40% का रेट लगता था उसके ऊपर 40% का ही रेंटल लगेगा। और कुछ एक्शनेबल क्लेम्स जो आपकी लॉटरीज वगैरह है उसके ऊपर भी इन्होंने 40% का रेट लगा दिया। यानी अब अगर हम गोवा जाएंगे और वहां पे अपना कैसीनोज में एंटर करेंगे तो पहले हमें 28% टैक्स लगता था, अब 40% लगेगा। 12% का अब हमें इम्पैक्ट वहां पे भी फील होने को दिखेगा। तो वो उसको कंपनसेट उन्होंने किया है एक एक्सेप्शनल कैटेगरी बना के लग्जरी गुड्स की। टोबैको, पान मसाला, सिगरेट्स, इसके ऊपर अभी कोई चेंज नहीं किया है। अभी इस पे जो पुराने रेट लग रहे थे वही रेट्स कंटिन्यू करेंगे। न्यू रेट इन सब के ऊपर 40% आएगा, कब से नोटिफाई होगा वो देखना पड़ेगा। ओल्ड रेट्स यहाँ पे मैंने विदाउट सेस लिखा हुआ है, इसके ऊपर सेस एडिशनल लगता था। अब आया सर कि इनका जो इवेंचुअली सारे रेट रिडक्शन का बेनिफिट पास ऑन कैसे होगा। तो सर, एंटी प्रॉफिटरिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन द लॉ एनी मोर, वो 2024 के अंदर ही खत्म हो गया था जो एंटी प्रॉफिटरिंग मैकेनिज्म है। बट ये रिसेंटली 4-5 दिन पहले डिपार्टमेंट ने इंटरनली एक सर्कुलर इशू किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि आप 22 सितंबर से पहले और 22 सितंबर के बाद, इन्होंने इसके पीछे एक लिस्ट भी लगा रखी है, मैं आशा जी को शेयर कर दूंगा, वो सबको शेयर कर देंगे। इसके पीछे उन्होंने एक लिस्ट भी लगा रखी है कि इस लिस्ट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको मॉनिटर करना पड़ेगा। दैट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, इसका ये मतलब नहीं है। ये मैं बोल सकता हूँ कि जो प्रोडक्ट उसमें लिखे हुए हैं उनको तो कम से कम गवर्नमेंट अब नोटिस कर रहा है। अगर वो नोटिस करते हुए प्रोडक्ट के अंदर आपने बेनिफिट पास ऑन नहीं किया तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट आपसे एक सवाल करेगा। उसकी लीगैलिटी क्या होगी वो एक क्वेश्चन मार्क है कि किस लॉ के अंदर ही वुड बी क्वेश्चनिंग। बट दी ऑब्जेक्टिव इज कि आप अपने आप को एंटी प्रॉफिटरिंग यहां से नहीं कर सकते हो, कि जो रेट रिड्यूस हुआ है उसका बेनिफिट आपको नहीं रखना है, वो आपको पास ऑन करना है। ये जो उन्होंने रेट कंपैरिजन मांगा है अभी उन्होंने पहले 6 महीने के लिए मांगा है। तो गवर्नमेंट 6 महीने के बाद क्या करेगी वी विल हैव टू सी। अभी जो रेट नोटिफिकेशन आई है उसके अंदर भी उन्होंने इस मैकेनिज्म को एज सच नोटिफाई नहीं किया, सो इट इज एन इंटरनल गाइडलाइन।
तो पहला तो हो गया कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पे एक प्रेशर क्रिएट कर रही है कि देखो हम डाटा कलेक्ट करेंगे, अगर आपने रेट चेंज नहीं किया तो हम आपसे सवाल जवाब करेंगे, तो सवाल जवाब का आपको देखना पड़ेगा। तो इस वजह से भी कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि यार हमें ये पास ऑन कर देना चाहिए। सेकंड है मार्केट कंपटीशन। अब मुझे पता है कि यार मेरा प्रोडक्ट जो है वो 118 रुपए की जगह 108 रुपए का हो गया है, तो मैं उसको 105 का हो गया है, तो मैं ऑब्वियसली मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए अपने आप को रखूंगा, मैं उस प्रोडक्ट को 105 कर दूंगा। क्योंकि मैं उसको 105 कर दूंगा तो मुझे वो बेनिफिट मिलेगा। सामने वाला अगर 118 ही रखेगा तो उसका माल नहीं बिकेगा। यानी मार्केट फोर्सेस भी फोर्स करेगी। तो आज मैं मार्केट लीडर हूं, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि भैया मैं अपना प्राइस कम नहीं करूंगा। अगर कॉम्पिटिटर ने प्राइस कम कर दिया तो आपको भी कम करना ही पड़ता है, आपको भी उस रेस में आना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे एक लग्जरी मिलेगी 13% की, या 12 से 5 हो रहा है तो 7% की, 18 से 5 हो रहा है तो 13% की। तो ये लग्जरी आप मार्केट में अपने स्पेस को इंक्रीज करने के लिए, अपने मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए यूज करेंगे। तो मार्केट फोर्सेस भी इसमें रोल, एक अच्छा रोल प्ले करेंगे। सो विद दिस वी कंप्लीट द फिफ्थ पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, जिसमें हमने रेट चेंजेस को डिस्कस करने की कोशिश करी है। सर अब यहाँ तक किसी की क्वेरीज है तो वी कैन टेक दोज क्वेरीज। Yes, so we have few queries. Yeah. I'll just read it for you one by one. So Amit ji is asking, what is the rate of paper used for educational books exempt supply? सर पेपर जो आपका उसके अंदर यूज होगा, क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज बुक, उसके लिए उन्होंने एग्जामेशन दे रखे हैं। आई एम रीडिंग आउट द एग्जैक्ट आइटम, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो अनकोटेड पेपर एंड पेपर, मैं 13th आइटम रीड कर रहा था। अनकोटेड पेपर एंड पेपर बोर्ड यूज फॉर एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक, लेबोरेटरी नोटबुक्स एंड नोटबुक, ओनली दीज पेपर आर एग्जेम्प्टेड, जो 12% से 0% पे गए हैं। इसके अलावा और कोई पेपर नहीं है, बाकी सारे आपके 12 to 18 पे गए। तो अगेन यू विल हैव टू सी, ये टेक्निकल हो गया कि कौन सा पेपर है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर कौन सा पेपर लग रहा था, एंड अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू एसरटेन कि अब आपकी इनवर्ट सप्लाई का क्या रेट हो जाएगा। The next is, can you please explain with an example for reversal of ITC on capital goods if the goods are shifted from taxable to exempt supplies? सर अगर कोई गुड टैक्सेबल से एग्जेम्प्टेड सप्लाई में जाता है तो उसके लिए गवर्नमेंट बोलती है कि आपने ये जो प्रोडक्ट है, तो कैपिटल गुड है, हम जीएसटी में उसकी डीम्ड लाइफ मानते हैं 60 ईयर और 60 मंथ, यानी 60 महीने उसकी लाइफ मानेंगे। तो आपको ये देखना है कि आपने वो परचेज कब किया था, 22 सितंबर तक उसके कितने महीने हो गए। तो एज्यूम करते हैं कि 24 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, तो बैलेंस 36 मंथ्स का आईटीसी आपको रिवर्स करना है। यानी आप क्या करेंगे, पहले टोटल आईटीसी लेंगे, उसको 60 मंथ से डिवाइड कर देंगे, आपका एक महीने का आईटीसी आ गया। अब ये हर महीने का आपका आईटीसी था जो गवर्नमेंट ने आपको डे 1 पे दे दिया। अब गवर्नमेंट कहती है कि जितने महीने आपने टैक्सेबल के लिए यूज किया उतना तो ठीक है, जितने महीने आप इसको एग्जाम्प्ट के लिए करोगे उतना आप रिवर्स कर दीजिए। तो आप इसको फिर अपना बैलेंस पीरियड के लिए 60 माइनस जो लाइफ आपने यूज कर लिया, बैलेंस मंथ का जो क्रेडिट है उतने को आपको यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा। Right, sir. हम्म। So next query is from Asha ma'am. In case of MRP based product, now MRP reduced, but after discount price remains same, as now discount percentage reduced by company. Can department question this move? In case MRP based product, now MRP review, but after discount. See ma'am, the objective is not what is the MRP। मतलब ये जो MRP का नोटिफिकेशन भी आया है ना, दिस इज एक्चुअली deviating from the entire concept. The purpose of the entire objective or rate reduction is that the landing price should change। आप एमआरपी चेंज करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एंड प्राइस जो कस्टमर को पहले मिल रहा था और जो उसके बाद मिल रहा है उसमें फर्क आना चाहिए। उसको चाहे आप डिस्काउंट की फॉर्म में दे दो, आप एमआरपी रिड्यूस करके दे दो। आप पहले एक प्रोडक्ट था 50% ऑफ पे देते थे, उसका एमआरपी 100,000 था, आप 50% ऑफ 500 का देते थे। अब आपने क्या किया, उसका एमआरपी 750 कर दिया,
और डिस्काउंट आपने से इतना रखा कि उसका लैंडिंग प्राइस 500 ही है। तो इन सिंपल वर्ड यू हैव नॉट पास ऑन दी बेनिफिट। आप पहले भी 500 का दे रहे थे, बाद में भी 500 का दे रहे हो, सिर्फ एमआरपी चेंज। तो वो जो है ना मिसलीडिंग है। जब आपकी स्क्रूटनी होगी तो लैंडिंग प्राइस भी देखा जाएगा कि लैंडिंग प्राइस क्या है। और ये जिन्होंने एंटी प्रॉफिटिंग डील किया हुआ है, दैट इज वेरी सिंपल। ये पहले भी जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, दे वर वेरी कैटेगोरिकल। इट इज नॉट व्हाट यू आर कीपिंग ऑन दिस प्रोडक्ट, it is what is the product, what is the end price that the customer is paying. So आपको उसको फोकस करना पड़ेगा, आप उसको कहीं और नहीं कर पाएंगे। Okay. And so next question is, under which category loader, mixer, or JCB kind of items given on lease will come? मैम वो आई थिंक लोडर मिक्सर्स वगैरह 18% पे आते हैं, तो यू विल हैव टू रीवेरीफाई। अगर वो 18 में ही है तो आपको उसको आगे 18 में ही आगे फॉरवर्ड करना है। मतलब लीज और विदाउट ऑपरेटर वुड बी 18% हो। Okay, thank you, sir. So next question sorry, is supplier required to check purpose of goods for determining rate of tax applicable, specifically like in case of auto parts to be used in normal vehicle or luxury vehicle or tractor, etc. तो आई वुड क्लेरिफाई, यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफी सिंपल कर दिया कि उन्होंने एंड यूज को हटा दिया। इररिस्पेक्टिव वेदर इट इज 18% और 40%, जो पार्ट्स हैं वो सारे 18% पे। तो वो आपकी एक बेनिफिट है, ईज हो गया है कि आपको ये नहीं देखना कि वो किसका पार्ट है, इट इज एट द रेट ऑफ 18%। Okay. Then there's another query from Shashima Palji. If a capital asset is being used for both taxable and exempt goods, would remaining period of 60 months be reversed in a ratio of taxable and exempt goods turnover? यस। तो जो भी आपके, फॉर एग्जांपल एक है कि मेरा 100% प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट हो गया, तो मैं वन टाइम रिवर्सल करूंगा। लेकिन अगर मेरा टैक्सेबल गुड्स भी है और एग्जेम्प्ट गुड्स भी है, तो एग्जेम्प्ट गुड्स के जो मेरा इनपुट है, यानी उसका जो गुड्स मेरे पास पड़े हैं उसका क्रेडिट वन टाइम रिवर्स करूंगा। और क्योंकि मेरे टैक्सेबल गुड्स भी हैं, तो मैं जो कैपिटल गुड्स को है उसको प्रोपोर्शनेटली हर महीने रिवर्स करूंगा टिल दी मेरा जो 60 मंथ्स कंप्लीट होते हैं। यानी वो आपको प्रोराटा करने को मिलेगा, लेकिन जो इन्वेंट्री खड़ी है, जो एग्जाम्प्ट हो गया, उसको आपको ओपनिंग पे ही करना पड़ेगा, यानी उस प्रोडक्ट को आपको राइट ऑफ आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। Sure, I think, sir, all questions answered. We can proceed further. जस्ट वन। Okay, so there's another query just popped up. Uh, यस। if solar work starts in August but completes in September month, what will tax? What? So, so again, it will depend upon the contract or arrangement that you have taken. कॉन्ट्रैक्ट ने अगर उसमें टाइमलाइंस डिफाइन कर रखी है, व्हाट इज द टाइमलाइन टू इशू द इनवॉइस, व्हाट इज द टाइमलाइन टू इशू द पेमेंट। if the timeline to issue the invoice and issue the payment is after 22nd September, then new rate. Otherwise, old rate will apply. Sure, sir. We can proceed now. All queries answered. Okay. Yeah. So अभी तक हमने जितने भी चेंजेस किए, whatever changes that we have discussed up till now were predominantly in relation to change in rate of taxes, either taxable to exempt, taxable to taxable without ITC, or change in rate of taxes. During this council meeting, there were also some suggestions and some improvements required in the process itself. तो उसमें सबसे पहला था GST ट्राइब्यूनल, GST ट्राइब्यूनल। तो उसके लिए the government has come up with 3 dates. So now they are saying that before the end of this September, September 2025, the tribunal will start accepting the appeals. तो वो appeals को accept करना start कर लेंगे। हियरिंग ऑफ अपील विल स्टार्ट बिफोर दिसंबर, दिसंबर से पहले इसी साल के वो अपील्स को सुनना भी स्टार्ट कर देंगे। 30 जून 2026 वुड बी दी कट ऑफ डेट, यानी 1 अप्रैल से पहले अगर आपका कोई नोटिस इशू हो, ऑर्डर आ रखा है, उस ऑर्डर की उन्होंने कट ऑफ डेट लगा दी 30th of June 2026। यानी आपको वो सारी अपील 30 जून तक फाइल करनी है, उसके बाद जब भी उनकी हियरिंग आएगी। यानी एक कट ऑफ डेट लगा रहे हैं जितने भी एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स आपको ट्राइब्यूनल में लेके जाने हैं। इसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी कल इशू हो चुकी है, तो 30th जून कंक्रीट है। पहली 2 के लिए अभी भी लॉ मतलब
दीज आर बेसिकली प्रोसीजरल इन नेचर, तो वो ऑटोमेटिकली जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो वो हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चेंज, द प्रिंसिपल बेंच जो है वो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की नेशनल एपिलेट अथॉरिटी भी बनेगा। नेशनल एपिलेट अथॉरिटी का मतलब क्या है? दिल्ली की एडवांस रूलिंग ने बोला इस पे 18%, पंजाब की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने बोला इसके ऊपर से 40%। तो अब एक ही प्रोडक्ट के ऊपर दो डिफरेंट रूलिंग्स आ गई, तो उनकी जो अपील जाएगी वो जस्टेट के प्रिंसिपल बेंच के पास जाएगी। इसके अलावा कुछ और मैटर्स हैं जहां पे मैटर जो है वो दो स्टेट्स के रेवेन्यू के साथ डील करा करेगा, उसको भी प्रिंसिपल बेंच के ऊपर लेके जाएंगे, इंक्लूडिंग आईएसडी। आईएसडी में क्या होगा, दो स्टेट्स के क्रेडिट्स होंगे, तो वहां पे भी प्रिंसिपल बेंच ऑफ जस्टेट विल बी इन्वॉल्व। नेक्स्ट इज there are certain amendments proposed in intermediary refund and registration, और पोस्ट सेल डिस्काउंट के ऊपर कुछ क्लेरिफिकेशन है। तो सबसे पहले सर इंटरमीडियरी। तो इंटरमीडियरी क्या होता था? मैं यहाँ पे इंडिया के अंदर एक ऑफिस खोल के बैठा हूँ स्टडी अब्रॉड का, कि आप आइए मैं आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कराऊंगा, दिल्ली में, यूएस में करा दूंगा, कनाडा में करा दूंगा। तो मैंने आपका एडमिशन करा दिया ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ने मुझे से 1 लाख रुपीज पे कर दिए एज कमीशन और फैसिलिटेशन चार्जेस। अब इस केस में मैं क्या बन गया? इंटरमीडियरी। क्योंकि मैंने एक सप्लायर जो कि ऑस्ट्रेलिया में था, जो एजुकेशन सर्विसेज दे रहा था, एक रेसिपिएंट जो स्टूडेंट था, इन दोनों को मिलाया, तो मैं इंटरमीडियरी बन गया। मैंने 1 लाख रुपए रिसीव करे, मैं बोलता था सर सप्लायर इंडिया में, रेसिपिएंट इंडिया के बाहर, पैसा फॉरेक्स में आया है, मैं और सब जो सप्लायर है वो दोनों अनरिलेटेड पार्टी हैं, यानी एक एंटिटी की दो, मतलब एक ही पैन की दो एंटिटीज नहीं है, तो हम डिस्टिंक्ट एंटिटीज हैं। तो मेरी चार कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट नहीं होता था। क्यों? क्योंकि सेक्शन 13(8) ऑफ जीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, यूज टू से कि इंटरमीडियरी के लिए द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर। सप्लायर मैं था, तो वो कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? मेरी खुद की लोकेशन। मेरी खुद की लोकेशन क्या हो गई? दिल्ली। तो जैसे ही दिल्ली बनती थी, तो एक्सपोर्ट की एक कंडीशन होती थी, प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी आउटसाइड इंडिया। अब वो डीमिंग फिक्शन से प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ रह गया? इंडिया में ही। क्योंकि इंडिया में रह गया, तो इंटरमीडियरी के ऊपर टैक्स का चार्ज बन गया। अब टैक्स लगता था, तो वो ल्यूक्रेटिव नहीं हो रहा था, या 18% की पॉकेट अपनी जेब से उस सप्लायर को देना पड़ता था। The government has accepted this, और they have said that they will amend this section, और इसको हम एक्सपोर्ट बना देंगे, यानी इंटरमीडियरी वाला प्रोविजन ओमिट हो जाएगा, ये नॉर्मल प्रोविजन से गवर्न होगा। नॉर्मल प्रोविजन क्या बोलते हैं? द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। रेसिपिएंट इंडिया के बाहर था, यूनिवर्सिटी थी, तो मेरा काम खत्म, मेरी सप्लाईज एक्सपोर्ट बन जाएगी और मुझे उसके बेनिफिट मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट सर अभी 22 सितंबर से स्टार्ट नहीं होगा। इसके लिए आईजीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट चाहिए, यानी फाइनेंस बिल जब अगला बजट आएगा उसके अंदर ये प्रपोज होएगा, प्रेसिडेंशियल असेंट मिलेगा, सारी स्टेट्स अपने यहाँ पे इसको नोटिफाई करेंगी, एंड फाइनली अ डेट विल बी गिवन जिस दिन से ये प्रोविजन अप्लाई करेगा। तो तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इस वाले प्रोविजन के अंदर भी सेक्शन 14 अप्लाई करेगा, क्योंकि आज टैक्सेबल है, उस समय पे ये एक्सपोर्ट बन जाएगी। तो वहां पे भी आपको ये देखना पड़ेगा कि सेक्शन 14 का इंटरप्ले कैसे आ रहा है, क्योंकि जैसे ही आप एक्सपोर्ट बनाओगे, यानी आप इस पे टैक्सेस नहीं दोगे, आपको आईटीसी मिलेगा, आईटीसी पे कोई इशू नहीं आएगा। बट गवर्नमेंट बोलेगा ये सप्लाई पहले की थी, आप बोलोगे बात की है, तो यहाँ पे भी आपका सेक्शन 14 थोड़ा सा अप्लाई आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा सर अब पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजों के रेट्स 5% पे आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी रियलाइज हो रहा है कि अगर 5% पे चीजें आती जा रही हैं, तो बहुत सारी जगह पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर भी बन रहा होगा। अगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बन रहा है, तो वहां पे रिफंड के केसेस भी बढ़ेंगे। तो उन्होंने प्रपोज किया है कि 1 नवंबर ऑनवर्ड्स हम प्रोविजनल रिफंड का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के ऊपर भी दे देंगे, यानी वहां पे भी 90% रिफंड पहले देने लगेंगे। अब आप लोग बोलेंगे सर पहले वाले रिफंड के ऊपर तो 90% मिलता नहीं था, तो ये इनपुट इन्वर्टेड ड्यूटी पे कैसे दे देंगे? तो सर उन्होंने बोला जो पहले वाला भी नहीं मिलता था, उसके लिए भी हम ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं कि अगर वो पास नहीं कर रहा है, सैंक्शन 90% नहीं कर रहा है, तो उसकी रीजन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। बिन अभी क्या होता है, उसको कोई रीजन रिकॉर्ड नहीं करनी पड़ती,
उन्होंने बोला हम उसके ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट कर देंगे कि उसको रीजंस रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, और कहाँ पे वो कर सकता नहीं कर सकता है वो हम नोटिफाई कर देंगे। यानी एक पैरामीटर को सेट कर देंगे कि यहाँ पे तो हम आपको प्रोविजनल रिफंड नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे उसकी रीजंस वो बता देंगे, उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। उसके अलावा अगर ऑफिसर रोक रहा है तो वो एक्सेप्शनल केस होने चाहिए, उसकी रीजन रिकॉर्ड करनी चाहिए, अदरवाइज 90% सैंक्शनिंग ऑटोमेटिक होनी चाहिए। इन्वर्टेड ड्यूटी के अंदर उन्होंने बोला कि हम सेम प्रिंसिपल्स को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड और कैरी कर लेंगे और बाय कर लेंगे। इसके अलावा उन्होंने बोला रजिस्ट्रेशन को लेके भी बहुत सारे कंसर्न्स लोगों के आ रहे हैं। सो इफेक्टिव 1 नवंबर दे आर सेइंग कि हम एक स्कीम और निकालेंगे। उस स्कीम के अंदर हम बोलेंगे अगर किसी की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 2.5 लाख रुपीज से कम है, इट इज नॉट टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स पेबल की बात नहीं हो रही, आउटपुट टैक्स, सेल के ऊपर टैक्स कंप्यूट किया गया 2.5 लाख आया, जिसको आप इनपुट से भी पे कर सकते हो, कैश लेजर से भी पे कर सकते हो। तो दे आर सेइंग अगर आपका आउटपुट टैक्स 2.5 लाख से कम होगा तो हम आपकी एक ऑटोमेटिक सिस्टम बेस्ड रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने का ऑप्शन डाल देंगे, जो 3 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया करेगा। एंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ये 96% जो रजिस्ट्रेशन है उसके ऊपर ये अप्लाई करेगा। सो इट इज अ वेरी गुड स्टेप दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग, क्योंकि आज की डेट में रजिस्ट्रेशन अपन लेना ही अपने आप में एक टास्क हो गया। सेकेंडली रजिस्ट्रेशन को लेके एक और इशू चलता है कि मैं amazon पे माल सप्लाई कर रहा हूँ, मैं दिल्ली बेस्ड हूँ, amazon बोलता है बैंगलोर में अपना सामान रख दो। बैंगलोर में मैं सामान तो रख दूं, मैं वहां पे प्रेमाइसिस कैसे लेके आऊं? तो वो एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि बैंगलोर की प्रेमाइसिस का क्या करें। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई सप्लायर ईसीओ से कर रहा है तो हम उसके लिए भी एक प्रोसेस देख रहे हैं कि उसको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रिंसिपल प्लेस ना दिखाना पड़े, उसके लिए वो प्रिंसिपल प्लेस यही दिखा दे, रजिस्ट्रेशन वहां की ट्रिगर हो जाए। सो अगेन इट इज अ स्कीम और अ डिस्कशन विच इज पेंडिंग, लेकिन अगर डिस्कशन में आ चुका है, प्रेस रिलीज में आ चुका है, तो होपफुली देयर वुड बी समथिंग कमिंग अप फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स ऑल्सो, जो वहां से सप्लाई कर रहे हैं, जिनको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, उसका कोई सॉल्यूशन यहाँ पे अब हमें मिलने की पॉसिबिलिटी है। अपार्ट फ्रॉम दिस सर, डिस्काउंट के रिलेशन में कुछ सर्कुलर इशू हो चुके हैं। ओरिजिनली ये पहले गवर्नमेंट ने बोला था हम क्लेरिफाई करेंगे, तो इसको मैं डिस्कस करता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले आया सेक्शन 15(3)(b को लेके। तो सेक्शन 15(3) बोलता है कि सर डिस्काउंट्स जो हैं वो आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड नहीं करने, डिस्काउंट्स आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू पे इंक्लूड नहीं करने। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, मैंने 1 लाख रुपए की सेल करी, मेरा एग्रीमेंट भी था, सब कुछ था, और उसके बाद 10,000 रुपए का आपको 2 महीने बाद एक डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि आपने कुछ कंडीशंस फुलफिल कर दी। आज इनवॉइस कितने का बन चुका है? 1 लाख रुपए का। टैक्स कितने का जा चुका है? 18,000 रुपए का। 3 महीने बाद डिस्काउंट जो हमारा एग्रीमेंट था उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। सेक्शन 15(3)(b क्या बोलता था? वो इन ट्रांजेक्शन वैल्यू के अंदर वैल्यू, डिस्काउंट की वैल्यू इंक्लूड ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं तो ऑलरेडी 1 लाख में इंक्लूड कर चुका हूँ डिस्काउंट की वैल्यू। तो सब्सिक्वेंटली मैं क्रेडिट नोट बना के रिवर्स करता था, और सेक्शन 15(3)(b में क्रेडिट नोट का जिक्र ही नहीं है। सेक्शन 15(3)(b में क्रेडिट नोट का जिक्र ही नहीं है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि हम ये 15(3)(b को ही ऑमिट कर देंगे, और ये सीधा सेक्शन 34 जो क्रेडिट नोट का सेक्शन है वहां पे ले जाएंगे, और 15(3)(b को हम डिफरेंटली वर्ड कर देंगे। यानी एक जो डीलिंग था कि क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट डिस्काउंट के लिए दिया ही नहीं हुआ था कानून में, उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया और बोल दिया कि हम उसको डीलिंग करके ओमिट करके एक नया 15(3) में डाल देंगे, और क्रेडिट नोट के साथ उसको सेक्शन 34 के साथ लिंक कर देंगे। तो ये तो हो गया उनकी प्रोसीजरल, जो उनकी एनॉमली थी लॉ की। उसके बाद ये पहले 3 बुलेट्स टेक्निकली इसी से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो सिर्फ अपना लॉ को इम्प्रूव और ठीक कर रहे हैं। तो इसको मैं छोड़ के आता हूँ, जो अपना 4th बुलेट इस पेज पे आपको नजर आ रहा है, जिसमें वो क्लेरिफिकेशन इशू करने की बात कर रहा है, जिसके सर्कुलर्स ऑलरेडी इशू हो चुके हैं। सबसे पहला सर्कुलर है नॉन रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ पोस्ट सेल डिस्काउंट थ्रू फाइनेंशियल ऑब्लिक कमर्शियल क्रेडिट नोट। मैंने 1 लाख रुपए की सेल करी, 18,000 रुपए का जीएसटी लगाया, 1,18,000। बाद में किसी भी रीजन की वजह से मैंने फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू कर दिया, 10,000 रुपए का इशू कर दिया, मैंने अपना आउटपुट टैक्स कम नहीं किया, रिसिपेंट ने मुझे 10,000 कम किए। हमेशा
जो टैक्स ऑफिसर थे वो बोलते थे 10,000 रुपए के ऊपर आईटीसी रिवर्स करने के लिए। नाउ इट हैज बीन क्लेरिफाइड कि हमें वो आईटीसी रिवर्स नहीं किया इफ इट इज अ फाइनेंशियल और अ कमर्शियल क्रेडिट नोट। सर बैड डेट डिफरेंट चीज होती है, फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट डिफरेंट चीज होती है। दोनों को सेम लाइंस के ऊपर नहीं रखेंगे। बैड डेट का मतलब अमाउंट डूब गया, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट का मतलब 100 रुपए में से 10 रुपए का 5%, 10%, 2%, दैट इज फाइनेंशियल, और उसकी भी कोई रीजन रहती है। तो अगेन आप बैड डेट्स को कैमोफ्लेज करके फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट मत बनाइएगा। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट सेल डिस्काउंट बाय मैन्युफैक्चरर टू द डीलर एट एडिशनल कंसिडरेशन इन द ट्रांजेक्शन बिटवीन डीलर एंड एंड कस्टमर। अब एक सिचुएशन लेते हैं कि मैंने आपको ये मोबाइल फोन दिया, मैंने मोबाइल फोन दिया आपको 1 लाख रुपए का, आप थे रिटेलर, आप इस पे अपना मार्जिन लगा के बेचते थे 10% का, से तो 1,10,000 रुपए का। तो इवेंचुअली आपको 1 लाख का पड़ता था और आप 1,10,000 रुपए का बेचते थे। अब किसी सिचुएशन की वजह से मार्केट में से एक कॉम्पिटिटर आ गया, इसी मोबाइल का कॉम्पिटिटर आ गया, उसने सिमिलर मॉडल निकाल दिया 1 लाख रुपए लैंडिंग प्राइस। क्योंकि उसने सिमिलर मॉडल सेम काइंड एंड क्वालिटी का था, उसने 1 लाख रुपए का बेचना स्टार्ट कर दिया। तो आपके प्रोडक्ट 1,10,000 के बिक नहीं रहे थे। तो आपने रिटेलर को बोला आप भी 1 लाख रुपए का बेचो, आपको जो 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है वो मैं भरूंगा। आप कस्टमर को दो 10,000 रुपए का, वो नुकसान मैं भरूंगा। तो वो जो 10,000 मैं आपको दूंगा, तो गवर्नमेंट ने बोला वो एडिशनल कंसिडरेशन मानी जाएगी और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, वो आपको देना पड़ेगा। थर्ड आइटम क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट सेल डिस्काउंट एज कंसिडरेशन इन ल्यू ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटी। यानी अगर कोई प्रमोशनल एक्टिविटी आप करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने दुकान है, मेरी दुकान के अंदर मैंने दो बंदों को 2 दिन के लिए लगाया कि वो आपका प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, तो मैंने एक एक्टिविटी करी। मैंने आपको एक अलग से शेल्फ दे दिया जिसको आपने डेकोरेट कर दिया, तो मैंने अपना एक शेल्फ आपको डेडिकेट कर दिया, तो दीज आर प्रमोशनल एक्टिविटीज। लेकिन अगर मैंने अपना एडवर्टाइजमेंट किया जिसमें मैं 10 कंपनियों के प्रोडक्ट डील करता हूँ, मैंने 10 को प्रमोट किया, तो वो प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं है। तो उन्होंने बोला कोई भी प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए अगर मुझे डिस्काउंट मिला तो मेरे को उसके ऊपर भी जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो इन तीनों के अंदर जो एक प्रोफेशनल की अंडरस्टैंडिंग इस सर्कुलर आने से पहले थी वही एज इट इज है। बस अब अच्छा क्या हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, हम ऑफिसर के सामने वो अंडरस्टैंडिंग को प्लेस कर सकते। सर विद दिस आई क्लोज माय डेलिब्रेशन। अब अगर किसी की क्वेरीज है तो वी विल टेक दोस क्वेरीज। Yes, sir, we have one or two queries. We यस। can see. Yeah. So one is any changes in LED light rates? No, there are no changes in LED right rate, but again, you will have to verify. Sir, do not expect me to memorize the entire rate notification and the HSN notification. It is not, मतलब, I am very clear in that कि मैं उसको याद नहीं कर सकता हूँ। You will have to check in with, मेरा कोई भी क्लाइंट एलईडी क्लाइंट्स का नहीं है, so I have not verified, but जहां तक मुझे ध्यान है इसमें चेंज आया भी नहीं है। Another query we have from Sachin Rathi ji. Hello, sir, can you please clarify the GST applicability of leasing on mining of stone and royalty payment to state government will covered in GST under RCM? And what will be the GST rate on raw stone supplier to another entity? सर आरसीएम तो आपके जो पहले थे वो सारे अब 12% की जब ब्रैकेट हट रही है तो 18% या 5% जिस कैटेगरी में चलेंगे, तो ये सारे आपके रेजिडुअल 18% कैटेगरी में चले जाएंगे। एज फार एज आपका जो क्वेश्चन है, कौन सा प्रोडक्ट था इसमें? Leasing on रॉ mining. स्टोन। रॉ स्टोन का मतलब आप स्पेसिफिक टू ग्रेनाइट द की बात माइनिंग, कर क्योंकि रहे हैं? इसमें। हाँ जी। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। रॉ स्टोन अगर आपके ग्रेनाइट या ट्रेगोनाइट स्टोन है तो वो 5% पे चले गए, चाहे वो रॉ स्टोन की फॉर्म में हो या फिर नॉर्मल की फॉर्म में हो। Rekha Gupta ji has a further question on her previous question. She's saying solar work half payment made in August and then tax charge with the new rates, and work is finished in September month. मैम आपको अपना अगेन एग्रीमेंट देखना पड़ेगा। आपके पास पेमेंट 22 से 100 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट था, तो आप कह रहे हो 22 सितंबर से पहले 50 रुपीज आ चुके हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूँ 50 रुपीज आ गए, वेरी गुड।
₹50 आने के टाइम पे क्या आपको ऑब्लिगेशन था इनवॉइस इशू करने का? क्या आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था इफ द आंसर इज यस, तो उस ₹50 के ऊपर आपको पे करना पड़ेगा पुराने रेट पे। और जो आप 22 सितंबर के बाद इनवॉइस करोगे और जिसकी पेमेंट 22 सितंबर के बाद आएगी, वो आपको वहीं पे करनी पड़ेगी, यानी न्यू रेट पे करनी पड़ेगी। The next, Sachin Rathi ji has placed some screenshot. Maybe it has for I think all questions are answered. yeah, yeah. Over to you, Asha ma'am, for a vote of thanks to sir and Neetu. There is another further question from Sachin Rathi. Tarunji, can you please? Let me download the screenshot. I think there was a judgment from the Supreme Court जहाँ पे था कि RCM पे नहीं करना है on the royalty from the mining activity. कुछ सर वो the आया 90 था 100 pages judgment is there. सर, अगेन वो आपको एक बार जजमेंट को थोड़ा सा कैटेगोरिकली पढ़ना पड़ेगा। इट विल नॉट अप्लाई इन ऑल द केसेस। जो वो जजमेंट है वो कैटेगोरिकली एक स्पेसिफिक राइट के, मतलब जो माइनिंग की बात कर रहा है। जो आप रॉयल्टी गवर्नमेंट को दे रहे होते हो वो कई बार सिर्फ यूज के लिए दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हो NHAI के, तो अगर आप सैंड यूज कर रहे हो किसी एरिया से उठाने की, उसके लिए भी आपको रॉयल्टी देनी पड़ती है। तो अगेन वो थोड़ा सा, अगेन आई विल हैव टू गो थ्रू दिस जजमेंट, उसके बाद ही मैं अपडेट कर पाऊंगा। बट सिर्फ मिनरल राइट्स की बात हो रही है, तो यू विल हैव टू बी वेरी कंसिडरेट की क्या है। Yeah. So I think mhm. all questions are answered now. Yes, ma'am. Or so can we proceed further for formal vote of thanks? So Tarunji, I will take this opportunity to give a formal vote of thanks. And जैसा कि मैं अधिकतर आपके सेशंस में जब भी सुना है और जब भी बोलने का मौका मिला है कुछ भी थैंक्स में या वेलकम में, तो एक चीज जो कॉमन रहती है वो यही है कि कितनी भी कॉम्प्लेक्स सी नोटिफिकेशन आई होती है, जब आप समझाते हो तो इट लुक्स लाइक कि अच्छा इतना इजी था क्या ये। तो अगेन इट वाज अ वेरी वंडरफुल डेलिब्रेशन फ्रॉम योर साइड तरुण जी, थैंक यू सो मच। एंड थैंक्स टू ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हु हैव जॉइंड अस टुडे। चैट बॉक्स में यूट्यूब का भी मैंने लिंक शेयर किया है, इन केस यू वांट टू व्यू द रिकॉर्डेड सेशन यू कैन वेरी वेल गो टू दैट लिंक। And thanks to Vaishali also for moderating today's session. Thank you so much. And thanks again to Tarunji. थैंक Thank you, यू। sir. We hope कि हम दोबारा से आपको सुनेंगे सर और दूसरे GST related topics पे। I know GST डेफिनेटली। 99C पे भी रहेगा, तो we will again request you. डेफिनेटली मैम। Thank you so much. ओके। वैशाली आप मीटिंग एंड कर दीजिएगा वहां से। Sure, sure.